गुरु प्यारे खालसा जी सरबत माई भाई बड़ी चढ़ती कला नाल गुरदेव कलगीधर महाराज जी का बख्शिया हुआ नारा फतेह जो एक सिमरन है बड़ी चढ़ती कला नाल इहदा उच्चारण करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह प्रवान होवे। एक कैसेट ढाडी जथा सविंदर सिंह भंगू पिंड कत्थू नंगल जिला अमृतसर, महेंद्र सिंह जी फरंगी मास्टर, हरभजन सिंह जी चंगियाड़ा पिंड पूनिया, स्वर्ण सिंह जी मान तुहाडी सेवा में उस वेले की दास्तान कहन लगे ने जिस आजादी नूं नेड़े लियाउण वास्ते सूरवीरां ने अपनी सीस तली उत्ते रखे ने। फांसी दे रस्से हस के चुम्मे ने। भारत का एक बहुत महान विद्वान गुसाई तुलसीदास भारत की मां नूं आवाज दे के कहना है, वो कहने मां जे तू पुत्र नूं जन्म देना है तेरी औलाद ये 3 गुण प्रधान होने चाहिए ने। जन्नी जने तो भगत जन कह दाता कह सूर, नहीं तो जन्नी बांझ रहे काहे गवावे नूर। भगत सूरमा दानी इस संसार सदा ही जुड़े ने। तुहाडी सेवा में वार शुरू कर रहे हैं कि भगतां ने अपनी जिंदगी में की कुछ किया है, सूरमे की कर गुजरे ने और दानिया ने अपनी जिंदगी में अपनी की हुई कृत कमाई के नाल की कुछ किया है और गुसाई तुलसीदास से कहे हुए वाक नूं किवें पूरा किया है। वार तुहाडी सेवा में इस तरह पेश है।
ਗੁਫਾਈ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਤੇ ਇਸ ਕਹੇ ਹੋਏ ਵਾਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਸਿੱਖ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਖੂਨੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਇਸ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚਾਚਾ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ਨੂੰ, ਜੱਟ ਨੂੰ, ਵਾਹੀਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾਂ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ। ਇਹਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਵਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਨ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਔਰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਚਾਚਾ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਮਾਰਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੋਲੋਂ ਘੇਰਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਛਾਤੀ ਫੜ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇਸ ਬਲੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਬਲੀ ਪੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ DAV ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਗੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸਰ ਸਾਈਮਨ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵੇਖਦਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਰ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਜਲੂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਖਿੱਚੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ
भगत सिंह जी अपने साथियों को ललकार के कह रहे हैं। साथियों ने मारिया ने छाला इस खिंची हुई लकीर को पार किया है। इधर लाहौर दी पुलिस ने SSP मिस्टर स्कॉट, छोटा पुलिस कप्तान सांडर्स इन्हों के हुक्म के नाल लाठी चार्ज होया है। हिंदू धर्म में प्रपक्ष लाला लाजपत राय इन्हों डांगा के नाल फट्टड़ होए ने, हस्पताल पहुंचाए गए ने। ठीक 4 दिन के बाद हस्पताल में लाला लाजपत राय की मौत हुई है। जिस दिन यही मौत हुई है, सरदार भगत सिंह जी अपने साथियों के नाल DAV कॉलेज लाहौर के कमरे में सुता पिया है। लाहौर DAV कॉलेज के स्टूडेंट सरदार भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, BK दत्त, भगवती चरण ये वो सूरवीर सन जेडे देश की आजादी की तड़प लेके इस हिंदुस्तान की आजादी की खातर अपने शीश तली उत्ते रख के लड़ाई लड़ रहे सन। आखिर जिस दिन लाला लाजपत राय की मौत हुई है, सरदार भगत सिंह अद्धी रात अपने कमरे में सुता है। सुते पैन सुपना आया है देश की आजादी एक लड़की के रूप में ये कमरे अंदर दाखिल हुई है। ये तन के उदारे चिट्टे बस्तर ने, किते किते लहू के धब्बे ने, सिर से पैरों तक लोहे दी जंजीरां दे नाल चकरी हुई ये सरदार के कमरे में पहुंची। उन्हें कहा भगत सिंह जे तेरे वर्गे जवान इस तरह गफलत की नींद सुते रहे तो फिर वो दिन दूर नहीं जो देश की आजादी समुद्रों पार और खारे समुद्र की फुटी जाएगी। ये गल आके सरदार भगत सिंह उठिया है। इन्हें उस जमीन तो मिट्टी की मुठ भरी है, अपने मत्थे न ला के इनू चुम के इन्हें भारत की आजादी की सौं खा के आख्या है। उन्हें कहा भारत माता तेरी मिट्टी की सौं खा के गल कहना है कि मैं जिन्ना चिर इन्होंने दोहां पुलिस अफसरों के कोलों लाला लाजपत राय के डुले हुए खून का बदला नहीं लै लेंदा उन्ना चिर मैं सजे हथ नाल रोटी नहीं खावांगा। अद्धी रात सरदार भगत सिंह आजादी देवी के नाल की गल्लां करन लगा है। ये कैसेट सरदार भगत सिंह जी की जो असीं कह रहे हैं तुहाडी सेवा विच। इस तो पहला साडी कैसेट महाराणी जिंदा एक बाजार में विक रही है। ये नाल एक होर कैसेट बाबा दीप सिंह जी की और ये नाल बाकी आने वाली कैसेटां सरदार श्याम सिंह जी अटारी किवें सुभरावां के मैदान में उन्होंने शहादत का जाम पीता है। सिख राज महाराजा रणजीत सिंह की मौत तो बाद अपने दियां चलियां हुई गोलियां किवें अपने दी छाती में लंघियां ने, अपने दियां चलियां हुई तलवारां इन्होंने किवें अपने का खून पीता है। JKR कंपनी सरदार महेंद्र सिंह जी सुबंधक साहब जिन्होंने JKR रिकार्डर कंपनी ये सारिया कैसेटां तैयार कर रही है। सरदार महेंद्र सिंह जी सुबंधक JKR रिकार्डर कंपनी वाले ने यह बीड़ा उठाया है और पूरे के पूरे इतिहास को तुहाडे तक पहुंचाने वास्ते उन्होंने लक तोड़ यतन किया है। सरदार भगत सिंह जी सुते पे अपने कमरे में आजादी देवी सरदार भगत सिंह के नाल होए लाला लाजपत राय के अत्याचार की कहानी इंज कह रही है।
भगत सिंह के नाल गल कर रही है। भगत सिंह जे तेरे वर्गे जवान इसे तरह गफलत की नींद च सुते रहे कदे भी देश आजाद नहीं होगा। सरदार भगत सिंह डीएवी कॉलेज होस्टल के कमरे आजादी देवी के नाल गल कर रहे ने। अचानक सरदार जी उठे ने, उन्हें सौं खा के आखे भारत माता मैं तेरे घर च पे हुए गुलामी के जलील ये जिन्ना चिर तोड़ नहीं लेंदा उन्ना चिर मैं अपनी जिंदगी में अमन और चैन के नाल नहीं रह सकांगा। दिन चढ़िया सरदार ने रात सुपने की कहानी अपने साथियों को दसी है। आखिर वो देश भगत इकट्ठे किए गए हैं जिन्होंने बीके दत्त, सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, भगवती चरण, ये घरवाली बीबी सुशीला, ये सारे इकट्ठा किया गया। अज एक बहुत बड़ा भुलेखा कई बार असीं पै जाता है। असीं कई बार भुलेखे दे नाल कह दिंदे हां भगत सिंह दत्त। भगत सिंह वखरा सी, बीके दत्त ये बंगाल की धरती से रहने वाला बटकेश्वर दत्त इसका नाम है और बहुत बड़ा देश भगत है। अपने हिरदे में देश की आजादी की तड़प लैके सरदार भगत सिंह जी के नाल ये डीएवी कॉलेज होस्टल के कमरे में इकट्ठे पढ़ते हैं और देश की आजादी के सुपने ये इकट्ठे लेंदे ने। देश की आजादी का रंग मानने वास्ते और अपने देश को आजाद कराने वास्ते इन्होंने हिरदे में कितनी बड़ी तड़प है। सरदार भगत सिंह सारी रात इन्नी चैन के नाल ये कट नहीं सकिया। दिन चढ़िया साथियों को इकट्ठे किया है, कोई अपने सुपने की कहानी दसीए, अपने साथियों के नाल एक व्योत बनाई है कि आने वाली रात को किसी नवेकली थां ते साडी एक मीटिंग होनी चाहिए और जिस पुलिस कप्तान ने मिस्टर सांडर्स, मिस्टर स्कॉट ते होर एहलकार जिन्हां ने लाला लाजपत राय की मौत की है, देश भगतां नूं लाठियां दे नाल धरती उत्ते लटा दिता है, विछा दिता है, उन्होंने इस कीते हुए कुकर्म का बदला लेना है। सरदार भगत सिंह जी अपने साथियों को तैयार कर लगे ने। आखिर लाहौर की धरती के नेड़े एक आबादी मजंगा की धरती में यह सूरवीर देश भगत इकट्ठे हुए ने। रात अद्धी तो बीत चुकी है। सरदार भगत सिंह अपने साथियों को इस मजंगा की धरती में की कह लगा है। यह साडी कैफट सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जिन्होंने देश की आजादी की तड़प लैके किवें हस हस के फांसी के रस्सियां नूं चुम्मिया और देश की आजादी को नेड़े लिया है। इहदे दूसरे पासे सरदार भगत सिंह किवें अपने साथियों को मजंगा की धरती में ललकार के कह रहे हैं और मजंगा की धरती में सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और बाकी देश भगत की मीटिंग करते हैं, की कहते हैं, इस कैफर के दूसरे पासे काढ़िए तुहाडी सेवा में कह रहे हैं।